جی میں ایک یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں، اتنا میں پچھلے 41 منٹ سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور اس میں آپ مجھے اتنی چیزیں بتا رہے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں. اب اگلا سوال کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ چاہیے، کیونکہ میں بھی اس قوم سے ہوں، میں بھی اس نیشن سے ہوں، میں بھی اس ملک سے ہوں، لیکن سوال کرنے کی جو جرت اور ہمت ہے وہ مجھ میں ہے نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آپی جی کی وفات کے بعد ہم نے دیکھا ایک عجیب طرح کا سیاسی رد عمل آیا، یعنی اس کی موت کو بھی سیاست کا رنگ دے کر جملے کستے جا رہے ہیں. سیاسی اختلافات میں ذاتی معاملات کو لانا، شرعی طور پر اس پہ آپ حضرت فرمائیں گے؟ سندیلا صاحب میری ایک گزارش سنیں. جی میں ایک دائی آدمی ہوں، میرے مخاطب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ اتنا جواب دے دیں کہ آخری ذات مخلوق میں کون سی ہے ہمارے لیے. یہ ایک سوال میں نے آپ ہی سے پوچھا، یہ مجھے ضرور آپ نے پوچھنا ہے. یہ میں واقعہ جی بولنا چاہوں، یہ پوچھنا جی ہے آپ بالکل نے کہ جب میاں عباس صاحب فوت ہوئے تو ایک جی مجلس میری ہوئی. یہ آپ بھولنا نہیں ہے، یہ ضرور میں لکھ پوچھنا. لیا میں نے. لیکن اس جی سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جی کہ یہ بتائیں کہ آخری ہستی کون سی ہے مخلوق میں؟ جناب محمد رسول اللہ. صلی ٹھیک ہے اللہ نا؟ علیہ وسلم. بے شک. جو اتھارٹی ہیں، جو ہمارے لیے یعنی حجت ہیں، اور بالکل ٹھیک. مطلقاً اللہ. اب آپ یہ دیکھیں، تاکہ میں زیادہ کسی کو قرآن و حدیث کے علاوہ لقب نہیں دیتا، نہ میں اپنی زبان سے کوئی لقب بناتا ہوں. ہم احیاء زندے، اموات جو دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں رسول اللہ کے ارشادات کیا ہیں. بس خوش قسمت ہو اے مسلمانوں کہ تمہیں گائیڈ کرنے والے یا اللہ ہیں یا اس کے رسول ہیں معصوم صلی اللہ. خوش قسمت ہو اے مسلمانوں کہ تم اپنی عبادت میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سوشل لائف میں اور بین الاقوامی زندگی میں تم اللہ رسول سے ہدایت لو. کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں سندیلا صاحب؟ بے شک کافی ہے بے یا نہیں؟ شک بے شک. اب حضور فرماتے ہیں انٹرنیٹ میں کچھ ایشو آیا ہے علامہ صاحب کے. ڈاکٹر جی بالکل اچھا اب انٹرنیٹ. جی جی نہیں جی جی دقت فرمائیں. نہیں، وہ کسی کا فون آ گیا ہے اصل میں. اب کیا اچھا بتائیں میرے جی آپ. کوئی بات نہیں. اچھا اب آپ کوئی دیکھیں، بات نہیں. میں آپ کے جی سامنے جی ایک ارشاد پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ جی. ایک ارشاد اللہ فرماتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس اس کا میں ترجمہ صرف بتاتا ہوں، تفسیر کا وقت نہیں ہے. کہ اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. خالق کون ہے؟ موت اور زندگی کا. گویا کہ دو حقیقتیں ہوئی نا، بالکل موت اور زندگی حقیقتیں. اور میں 4-5 روز پہلے میرا ایک لیکچر تھا بین الاقوامی لوگوں کے لیے، جس میں میں نے یہ کہا کہ میں آج مسلمانوں سے مخاطب نہیں، انسانوں سے مخاطب ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پورے انسان اس میں متفق ہیں یا نہیں کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے بے یا شک نہیں؟ میں مسلمانوں بالکل کی بات متفق. نہیں کر رہا، چونکہ سارے انسان انسان میرے رسول کے امتی ہیں. بے مجھے شک اتنا یعنی انفارم ہونا چاہیے کہ میں پورے انسانوں سے خطاب کروں. بہرحال یہ میرا رات دن کا کام ہے. تو اب اللہ پاک نے موت اور حیات کا خود خالق ہے، اور یہ سارے ہی مانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں بھی مانتے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے یہاں نہیں آتا. اچھا میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں، کیا جی امریکن، کیا برٹش، کیا یورپین اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں یہاں سے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں. تو جب آتے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو یہ تھوڑی سی زندگی چھوٹی سی یہ اس کی مرضی سے گزارے. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر امر میں اللہ اور اس کے رسول سے ہدایت لینی چاہیے. اب آگے سنیں کیا ہدایت ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ عجیب حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیاءنا. یہ الفاظ بڑے عجیب
माना खेज हैं। हजूर की सिफ्त है जवामिउल कलिम, बात थोड़ी माना बहुत। अब इसमें हजूर ने फरमाया कि हमारे मुर्दे, ये लफ्ज सुने, हजूर ऑन कर रहे हैं तमाम मुसलमान उम्मत के मरने वालों को, हमारे, ये नहीं कहा तुम्हारे। हमारे एक हदीस में ये भी है उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, कि अपने मुर्दों को अच्छा जिक्र करो। ये हदीस अजीब है, मैंने इसीलिए इख्तियार किया। हजूर ने फरमाया ये सब मरने वाले मेरे हैं। हुजूर कौन कर रहे हैं हर उस मोमिन को जो ईमान के साथ इस दुनिया से गया। अब आप बताएं, उनसे आपने कुछ तकलीफ देनी है उनको? आगे फरमाया फतूदु अहयाना, कि तुम हमारे जिंदों को तकलीफ दो। यहाँ भी हम हजूर ने फरमाया हमारे मुर्दे, हमारे जिंदा। इस तसव्वुर को अगर मुसलमान समझ ले कि अगर मैंने जिंदों को अजियत दी तो वो रसूलुल्लाह के जिंदे हैं, अगर मुर्दों को दी तो वो रसूलुल्लाह के मुर्दे हैं। सोचे तो सही, जरा सोचे तो सही, इसी में इलाज हो गया या नहीं? अब आपका मैंने कल परसों सुना था, कुछ बातें आप गुस्से में फरमा रहे थे, लेकिन मैं गुस्से में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, ऐ जालिमों, लोगों को जिनका कोई फौत हो जाए, उन फौत होने वालों को तुम अच्छा जिक्र न करके किसकी मुखालफत कर रहे हो? किसकी? हजूर ने क्या था, अमवातना, ये मेरे मुर्दे हैं सारे, मेरे मुर्दे हमारे। और आगे फरमाया तो दो अहयाना, हमारे जिंदों को तुम तकलीफ दोगे। तो हजूर ने हमारा कहा है हमें, जिसका भी कोई इस दुनिया से चला गया हजूर ने उसे अपना कहा। ये अजीब, आज ही मैंने ये हदीस देखी, मैंने कहा ये मैं आज जरूर। अब आप यहीं से सोच लें, ये काफी है उन लोगों के लिए जो हर चीज को, जिन्होंने जिंदगी और मौत के फलसफे को ही नहीं समझा, सिर्फ जुबान उनकी लंबी है और दो कलमे वो कह सकते हैं, और माफ करना हम अल्लाह और रसूल को नाराज करें। हजूर ने एक जुमले में फरमाया, जुबान को पढ़ के फरमाया कि ये तुम्हें हलाक करने वाली है, इसको काबू में रखो। मैं नसीहत करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इर्तिकाब किया इस बात का कि हर मरने वाला किसका है, बोलो, हुजूर का। अमवात ना कहा, हमारे मुर्दों को, और हर जिंदगी हजूर का है। ये हजूर की रहमत है मुर्दों के लिए भी और जिंदों के लिए भी, और हजूर रहमतुल लिल आलमीन है। और रब कह रहा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इख्तिबार करूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अल्लाह अगर इम्तिहान न ले बंदों का तो अल्लाह को पता नहीं है कि कौन अमल करेगा अच्छे? पता है या नहीं? लेकिन अल्लाह ने जाहिर करना है इस दुनिया में कि ये फरीक हक वाला है, ये फरीक मुखालिफ है। और आगे ये फरमाया अहसन अमला, ये नहीं कहा अक्सर अमला। ये नुक्ता समझे मेरे सुनने वाले भी, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी आजमाइश और इम्तिहान कसरत अमल से होगा, नहीं, हुस्न अमल से होगा। क्या ये हुस्न अमल है जो हम लोग कर रहे हैं आज? भी नहीं, ये तो अपनी ही बर्बादी हम कर रहे हैं। अब ये काफी है उन लोगों के लिए अगर उनमें कुछ रमक है कबूल करने की हक को। आगे एक और हदीस भी सुन, हजूर ने फरमाया उज़कुरू महासिन मौताकुम। महासिन ये हुस्न की जमा है, यानी उनकी खूबियां बयान करो। किस मंज़िलल्लज़ी मा साक़तो, रसूलुल्लाह के बाद कोई मासूम नहीं, कोई जात मासूम नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ही मासूम जात थी या मियाँ शरीफ साहब मासूम थे या उनके खानदान वाले। हम तो मासूम रसूलुल्लाह के बाद किसी को मानते ही नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह की तालीम सुने, क्या है? आपने फरमाया उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मुर्दों के। अब यहाँ आपने क्यों कहा? कि ताकि बोलने वाले को शर्म आए कि ये नवाज शरीफ का मैयत नहीं, ये मेरी मैयत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये रसूलुल्लाह के कलाम के हुस्न को समझो है मुसलमानों, और उस शख्स के कलाम की बलागत को समझो जिसे अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने रसूल को जवामिउल कलिम दिए हैं।
तो सोचें तो सही, हम एक इंसान की मौत शायद पूरी कौम की हिदायत का सबब बन जाए। मेरी जो बात सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात के लोग हैं, मैं अपील करता हूं उनको कि आप सोचें, अपनी आकबत को हम खराब ना करें, ना अपनी दुनिया को बर्बाद करें, ना ही हम किसी को ईजा पहुंचाएं। ये अल्फाज हैं, उज़कुरू महासिन मौताकुम, आगे फिर फरमाया वकुफू अन मसाविहिम। अब ये नहीं है कि वो मासूम है, अगर उनसे कोई कोताहियां गलती हुई हैं तो उनसे, कुफू का माना ये होता है जुबान बंद रखो। ये किसका हुक्म है? उस रसूल का जो रसूल मुता और रहमतुल आलमीन है, जिनकी सिफारिश की हम रातों दुआएं करते हैं और जिनकी मोहब्बत के हम गाने गाते हैं, नाते पढ़ते हैं, नज़में पढ़ते हैं। ये नहीं कुछ ए मुसलमान, ए मुसलमान, तू ये समझ ले कि तेरा दीन ऐसा नहीं कि तू नमाज के वक्त अपना कोट पहन ले, पगड़ी पहन ले और जो ही फारग हो तो अपनी जिंदगी में जाए, सियासी जिंदगी में जाए, कारोबार में जाए, तो कहे नहीं वो ईमान तो मैं घर छोड़ आया हूं। हम ऐसे मुसलमान हैं? तो मैं ये समझता हूं कि आज की ये मजलिस हमारे सब के लिए इबरत और नसीहत की मजलिस है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ऐसी मजालस में नसीहत फरमाते थे, और हमारे अकाबिर भी और बड़े भी, कि आदमी का दिल मोम होता है, उसको ये पता चलता है कि मेरा भी अयाम ये होगा। अब ये देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब क्या है कि दूसरे की मौत को देख के अपनी मौत को याद करो। ये इसका तर्जमा ही ये है कि हम सभी इसी तरफ जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती कि इन्ना लिल्लाह तो आम पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, जो दीन पढ़ा हुआ है वो भी पढ़ता है, जो नहीं पढ़ा वो भी। क्या हो गया हमें? क्या हमने, अल्लाह एक आयत फरमाते हैं, अफा हसिब तुम, ये गौर से सुने इस आयत को और मेरे सामीन भी सुने, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने आपको बेकार बनाया है? ये एक कलम तो बेकार नहीं, ये घड़ी बेकार नहीं, ये गिलास बेकार नहीं, तो इतना खूबसूरत इंसान, समीओ बसीर इंसान, ये बेकार बना है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, हमें झंझोड़ रहे हैं। आगे फरमाया वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुम्हें ये तो नहीं शुबा हो गया कि तुम हमारे पास आने वाले नहीं हो? ये मेरी नसीहत है अपने लोगों को, दूसरे लोगों को, और सब उन मुसलमानों को जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, और सब मेरे भाई हैं और मेरे मुखातब हैं और मेरे रसूल के उम्मती हैं। बल्कि मैं तो इंसानियत पूरी को कहता हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह हमारे की सारे इंसान उम्मत हैं। कुछ हैं उम्मत इजाबत, जैसे हम मुसलमान, गुनाहगार भी हों हम, तब भी हम आपके उम्मती हैं, और दूसरी है उम्मत दावत, कि जिनको दावत देना मेरा और आपका काम है। हम ये काम क्यों ना करें? बेकार कामों में हम लगे हुए हैं। तो जो लोग ये काम करके गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं एक किस्सा यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, आप ही का मुझे अभी याद आ गया। जी प्लीज। जब मियाँ अब्बास शरीफ साहब की वफात हुई तो मियाँ नवाज साहब आए तो मुझे फ़ोन किया कि मेरा ख्याल है खाना हम इकट्ठे खा लें। तो मैंने कहा कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 12:30 बजे नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। बहरहाल जब हम गए, खाना वगैरह खाने के बाद हुसैन को कहा कि अंकल को ऊपर ले जाओ आपी जी के पास, कि तसल्ली दे। तो इसलिए ही मुझे उन्होंने बुलाया था। मैं जब ऊपर गया, अब आप देखें उस औरत का ईमान देखें। मैंने एक सवाल किया जी, मैंने कहा कि आपी जी ये बताएं कि दो बड़ी